Once again, good afternoon, all of you. And now, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 13, occupations. Occupation means whatever a person does for earning their livelihood. Livelihood means पैसा कमाने के लिए. Livelihood का मतलब होता है जीने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, लाइक हाउस, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, है ना. शेल्टर मीन्स हाउस, शरण. हम लोग कहाँ रहते हैं? वी लिव इन अवर हाउसेस ओनली ना, सो दैट इज नोन एज शेल्टर. यस. Food, you all know, food is very necessary. We should eat food every day. Yes. If we do not eat food for 1 or 2 days, then also we will fall, we will feel very sick. We will feel very less energetic and, will not feel energetic, will not feel active. So food, shelter and clothing. For that, we will have to earn money, है ना. खाने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा. Yes. So to earn money, what do we do? Occupations. पैसा कमाने के लिए हम जो काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशंस ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर डिग्री लेनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है ना. जैसे डॉक्टर लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए. साइंटिस्ट ऑल्सो हैव टू स्टडी अ लॉट. बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको, तब जाके साइंटिस्ट बनते हैं. ठीक है. So if you want to become a scientist in future, you have to study very hard. Yes. So these are known as professions. In this chapter, we will read about them in detail. Profession and occupations. Yes. See, this chapter starts with a story. And stories are your best part of the book. Yes or no? One story is there, Harjeet, and a story of, his father. Right? So Harjeet comes to his father. Harjeet अपने father के पास जाता है अपना homework लेकर. That और उसका homework क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के बारे में लिखना होता है उनको. ठीक है. किसके बारे में लिखना होता है? अपने पेरेंट्स के बारे में. और उनको क्या क्या लिखना पड़ता है? पेरेंट्स का नेम, उनके फ़ोन नंबर और उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में. तो हरजीत जो होता है उसको पता नहीं होता ऑक्यूपेशन क्या होता है. ठीक है. सी, Harjeet comes to, in your books, open chapter number 13. Open chapter number 13, which page number is this? Page number 81. Harjeet comes to his father with his homework, which requires him to write about his parents. In his homework, he is supposed to write about his parents. Dad, the class teacher has given us the homework. I need your help to complete it. Okay. Class teacher has given me homework and I need your help to complete this. These things he says. Who says? Harjeet says to his father. What kind of help do you need, Harjeet? See, this is said by his father. See here, this is said by his father that what kind of help do you need, Harjeet? So Harjeet says, I have to write my parents' names, their phone numbers, and about their occupations. What is the meaning of occupation? Harjeet asked, what is the meaning of occupation? Yes? Then his father replies, occupation is the work that people do to earn a living. लोग अपने जीवन को बिताने के लिए जो काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं, वही ऑक्यूपेशन होता है. लाइक आई डिजाइन प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स, सो आई एम एन आर्किटेक्ट. कुछ लोग होते हैं जो घरों का मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि इस घर में ये रूम यहाँ होगा, किचन इधर होगी. यस. सो दोज पर्सन्स आर नॉन एज आर्किटेक्ट, है ना. वो बिल्डिंग्स का प्लान बनाते हैं, घरों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स. ठीक है. तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट्स डू व्हाट वर्क? दे मेक प्लान्स फॉर द बिल्डिंग्स, दे makes map for the buildings. Yes. Just like mom teaches us in a school, so she is a teacher. So Harjeet then says, like sometimes you replies to your teachers and your parents,
In the same way, Harjeet also replies, अच्छा तो जैसे मम्मा स्कूल में काम करती हैं, पढ़ाती हैं, it means मम्मा क्या है, टीचर है. So his father say, yes, you are correct, son. Thank you, Dad. Now I can complete my homework by myself. So this is your homework, students. You all will write down your parents' name, your father's name, your mother's name, yes, and their occupations. है ना? Some students, mother is housewife. She is working in their house only. Na? She is not working anywhere else. So you will write housewife. Okay? See students, one table is given, that is occupation. Occupation is what? The work that people do to earn a living. ऐसा लोग जो क्या कमाने के लिए करते हैं? earn means कमाना, ठीक है? To earn a living. Living means I told you, जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए हमें, वो सबको कमाना, उसके लिए सबको कमाना पड़ता है. Yes. एंड वी अर्न मनी, है ना? मनी से हम लोग हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. यस. एग्जाम्पल, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फिशरमैन होते हैं. ठीक है? फिशरमैन कौन होता है? हु कैच द फिशेस, जो मछलियों को पकड़ता है, मछुआरा. यस. कंस्ट्रक्शन वर्कर मीन्स जब बिल्डिंग वगैरह बनती है ना, उसको कंस्ट्रक्शन का वर्क बोलते हैं. जब घर बनता है तो उसको कंस्ट्रक्शन का वर्क. कंस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना. तो फैक्ट्रीज वगैरह बनती है, घर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, है ना? कुछ ऑफिसेस बनते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस बनते हैं. तो उन सब का वर्क जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके लिए कुछ वर्कर्स चाहिए होते हैं. ठीक है? सम पीपल आर फार्मर्स. फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मिंग. यू ऑल नो. यस. बिजनेस वुमेन, ऐसी वुमेन जो क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं. व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? किसी चीज को सेल और परचेज करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही बिजनेस कहते हैं. और बिजनेस किस लिए किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट? नाउ सी, ये तो थे नॉर्मल ऑक्यूपेशंस, है ना? आपको मैंने बताया था कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, पर्टिकुलर उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं. ठीक है? सो सर्टेन ऑक्यूपेशंस विच नीड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन स्पेशल कॉलेजेस टू लर्न a particular kind of work are called professions. Yes. So कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ता है. ठीक है? और ऐसे ऑक्यूपेशंस को क्या बोला जाता है? प्रोफेशंस. व्हाट डू वी कॉल देम? प्रोफेशन, राइट? एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट, है ना? जो स्पेस में जाते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स. साइंटिस्ट, है ना? कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो साइंस के बारे में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं. डॉक्टर्स तो यू ऑल नो. लॉयर्स होते हैं वकील, जो कोर्ट्स में केसेस लड़ते हैं, ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के. यस. एंड वन जज इज ऑल्सो देयर हु सेज इन द कोर्ट्स, ऑर्डर, राइट? दैट इज जज. ही इज नॉट अ लॉयर, राइट? ही और शी. नाउ व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? यस. Page number 82 of your book, students. Open that. What is an occupation? When people grow up, जब people बड़े होते हैं, है ना? When people grows up, जब लोग बड़े होते हैं, आपने भी देखा होगा, अभी तो आप लोग बच्चे हो, है ना? आपसे कुछ भैया दीदी होंगे थोड़े बड़े, वो लोग पढ़ाई करते हैं. कुछ उनसे बड़े होते हैं, वो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? फिर कुछ जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं. उनको मनी अर्न करना पड़ता है ना? They usually work to earn a living. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? काम करते हैं पैसा कमाने के लिए. By earn a living, we mean we need to earn money, है ना? मैंने आपको बताया था लिविंग अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
मनी अर्न करनी पड़ेगी, पैसा अर्न करना पड़ेगा, रुपए अर्न करने पड़ेंगे, और क्या करेंगे हम उन पैसों से? वी कैन लिव a happy life, a comfortable life, whatever we want we can purchase with money. Yes, जो हमें जो भी चीज चाहिए होती है हम पैसों से खरीद सकते हैं, राइट? सो हमारी लाइफ को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, विच वी रिक्वायर टू लिव कंफर्टेबली और टू मेक अ लिविंग, ठीक है, या फिर जीवन का गुजारा करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी. यस, पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी. लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं ताकि वो मनी अर्न कर सके, राइट? द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न ए लिविंग इज नॉन एज ऑक्यूपेशन, है ना? लोग जो लिविंग अर्न करने के लिए वर्क करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. Different type of occupation, different types of occupations are given below. Journalist, who is a journalist? आपने कभी न्यूज देखी है टीवी में? Have you ever seen news channels on your televisions or on your phones? Okay, tell me one thing. Newspapers you must have read. Newspapers आपने पढ़े होंगे, magazines आपने पढ़ी होंगी, या न्यूज चैनल देखा होगा, ठीक है? आप देखते हैं जो न्यूज चैनल्स में जो रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, है ना, कुछ लोग रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं कि लाइक सबसे बड़ी खबर, आज की ताज़ा खबर, है ना, ऐसा सब सुनने को मिलता है. सो वो लोग होते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है? Whose are these people? They are journalists. Who are these people? These people are journalists, ठीक है? A journalist gathers and reports the news in newspaper, magazines or on radio and television. न्यूज़ क्या होती है? कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, है ना, जो हमें पहले से नहीं पता थी. जैसे हमें कैसे पता चलता है? कई बार अमेरिका में भूकंप आया, अर्थक्वेक आया है, या अमेरिका में बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, या वहाँ लॉकडाउन लगा है, या फिर इंडिया के किसी पार्ट में टेररिस्ट अटैक हुआ है, या फिर इंडिया के किसी पार्ट में लैंडस्लाइड हुआ है, इंडिया के किसी बेटे ने या बेटी ने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया है, या फिर विराट कोहली ने मैच जीता. ये चीजें हमें कैसे पता चलती है? न्यूज से इंफॉर्मेशन मिलता है हमें. न्यूज क्या होता है? इंफॉर्मेशन, है ना? तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पहले पता नहीं थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, और फिर न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, टेलीविज़न वालों को, मैगजीन वालों को, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सब जगह, इंटरनेट पे वो न्यूज़ को फैला देते हैं. हमें कैसे पता चलता है आज कोरोना के इतने नए मरीज मिले या इतने नए पेशेंट्स मिले? थ्रू न्यूज़, है ना, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं या जो हमारे लिए न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर? होपफुली दिस इज क्लियर. जर्नलिस्ट कौन होता है? JOURNALIST, जर्नलिस्ट. जो न्यूज़ और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करेगा और न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे, है ना, टीवी में, रेडियो में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेगा, वही होता है जर्नलिस्ट, ठीक है? आई हैव हाईलाइटेड इट फॉर यू, राइट? नाउ नेक्स्ट, an engineer designs and builds things such as roads, railways, bridges और machines. इंजीनियर क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? या तो कोई मशीन की डिजाइन बनाते हैं या फिर मशीन बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रोड्स का डिजाइन बनाते हैं. ऐसे नहीं कि इंजीनियर्स रोड पे जाकर रोड बनाने लग जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं. वो क्या बना के देंगे कि ये रोड इस तरह से बनेगी, ये इन रास्तों में से गुजरेगी,
ठीक है, इसके लिए इतना मटेरियल चाहिए होगा, ये इतनी ब्रॉड होगी, ठीक है। सो ये सब डिजाइनिंग कौन करता है? इंजीनियर। क्लियर? रोड्स, रेलवेज, ब्रिज वगैरह जो बनते हैं, इनको सबको डिजाइन कौन करता है? इंजीनियर। मशीन्स, ठीक है। तो इंजीनियर का क्या काम होता है? अब आप सबको बता सकते हो, आपके छोटे बहन भाई हैं घर में, या फिर हो सकता है आपके दीदी भैया, उन्हें भी नहीं मालूम हो इंजीनियर का काम क्या होता है। क्या वर्क होता है इंजीनियर्स का स्टूडेंट्स? डिजाइन्स एंड बिल्ड्स रोड्स, रेलवेज, मशीन्स और ब्रिजेस, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी टेक्निकल थिंग्स, ठीक है, कौन बनाता है? इंजीनियर। एंड स्पेलिंग ऑफ इंजीनियर इज गिवन here in your book. I am highlighting it because the board is quite blurred, so you cannot see there properly. A politician, a politician is someone, एक politician कौन होता है? एक ऐसा इंसान who has a job in politics, जो पॉलिटिक्स में जॉब करता है। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, राजनीति मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें है ना, जो सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक है। दोज पीपल आर नोन एज पॉलिटिशियंस, ठीक है। स्पेशली एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हम या तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को बोलते हैं, है ना, या फिर बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कुछ गवर्नमेंट के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। पॉलिटिशियन कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है, पॉलिटिक्स में काम करता है। और क्या काम करते हैं ये लोग कि हमें सिटीजन्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या क्या पॉलिसीज प्लान्स बनाने हैं, हम हमारी कंट्री को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या प्लान्स बना सकते हैं। यस, ए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम्स बनाता है, ठीक है। सी ए प्रोग्रामर और a programmer writes or creates instruction for computers called computer programs. I guess in your computer class also Garima ma'am has told you about this, that a programmer is the one who will create instructions, who will write a program, who will write instructions for computers, and these are known as computer programs, okay. So those who will operate the computer programs will be known as programmers. A lawyer studies law. I told you lawyer क्या करता है? law के बारे में पढ़ता है। law क्या होते हैं? official rules and regulation. What are laws? ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे बेटा आपको स्कूल में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू बी इन यूनिफॉर्म, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, you have to do your work on time, you have to be in neat and clean manner. So in the same way जो lawyers हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो हर एक इंडियन सिटीजन को फॉलो करना होता है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा जैसे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते हैं तो टेररिस्ट को पनिशमेंट मिलता है। यस, वो पनिशमेंट उनको मिलता है लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही होते हैं लॉ। लॉ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कानून, ठीक है। तो कानून क्या होते हैं? ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑफिशियल मतलब जिनको गवर्नमेंट ने बनाया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। इन हायर क्लासेस you will learn more about constitution. So a lawyer studies law and provides assistance to people in the matters relating to law. law से related जो matters है, like कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में आकर कोई जबरदस्ती रहने लग जाता है या बोलता है ये तो मेरा घर है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, एक लॉयर के पास जा सकते हैं, वो हमें ये बताएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या वो घर, वो इंसान उस घर में आ सकता है, क्या वो घर उसका है या वो घर हमारा है ना। प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बता सकते हैं कि ये घर किसका है। वैसे ही सिमिलरली कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो किसके पास जाएंगे? लॉयर्स के पास, कोर्ट्स के अंदर। कोर्ट्स में केसेस होते हैं तो वो केसेस कौन सॉल्व करते हैं? लॉयर्स, ठीक है।
लॉयर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वकील. In sports, a coach is one who trains, instructs and guides a sports player or a team. कोच कौन होता है? कोच होता है जो टीम को, प्लेयर्स को गाइड करता है, उनको खेलना सिखाता है, ठीक है, उनको गेम के रूल समझाता है, वही इंसान क्या होता है? कोच. So students, hopefully till then you have got it, and for today this is enough. In next class we will complete this chapter, and we will do question answers also. So that's all for today.